हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। हम पार्ट 2 का शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लैटिन वर्ड में किसी भी बायोलॉजिकल नेम को कैसे लिखते हैं। हर एक स्पीशीज़ का या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म का एक बायोलॉजिकल नेम होता है। तो वो मैंने दिखाया था, और वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आगे बढ़ते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो मैं रीड वाला लगा रही हूँ, इसको ध्यान सुनिएगा, आपको खुद धीरे समझ में आएगा। Illustrated with the example of Mangifera indica. While the specific epithet starts with a small letter, it can be illustrated with the example of Mangifera indica. Name of the author appears after the specific epithet, I, at the end of the biological name and is written in an abbreviated form, e.g., Mangifera indica Linn. It indicates that this species was first described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would, of course, think of animals with external ears and body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plant. Hence, all these, dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc., are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa, but you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals, and dogs represent taxa at different levels. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. External and internal structure, along with the structure of cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन मतलब हम एक ही ग्रुप के चीज़ों को क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरीज में क्या करें, डिफरेंट ग्रुप को क्या करें, अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइड करें। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन की मीनिंग को भी येलो कलर से मैं मार्क कर रही हूँ। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into a convenient categories based on some easily observable character। ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी कैटेगरीज के बेस मतलब कैटेगराइज या उसके कैरेक्टर के बेस पे हम क्या करते हैं कन्वीनियंटली हम उसको क्या करते हैं, इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसको हम इजिली कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ ले क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट्स और इंसेक्ट्स, ये हमने अपने से ग्रुप बना के, प्लांट का अलग ग्रुप है, एनिमल का अलग है, डॉग, कैट्स, इंसेक्ट्स, इन सारी चीजों को हम इजिली ग्रुप कर सकते हैं। हम इजिली इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हमको पता है कि डॉग कैसा दिखता है, कैट कैसे, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं डॉग और कैट के में। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर ऑफ विद इन द ऑर्गेनिज्म इनटू दैट ग्रुप। ठीक है, व्हाट इमेज यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। जब हम डॉग, एक डॉग को जब हम देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं, भाई सामने हमारे डॉग खड़ा है तो हम डॉग ही सोचेंगे ना कि एक डॉग ही है। बिल्ली तो हम नहीं समझेंगे ना कि ये कैट है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ if we think to the things of Alistair, we know that we are talking about similarly. Suppose we were to say mammals, you would of course think of animal। मतलब यहाँ पे हम अगर mammals की बात करें, जैसे ही मैंने mammals का बोला आप लोगों को, तो आप तुरंत डॉग, कैट या ऐसे एनिमल का नाम लेते। तो mammals is come to the अंडर द एनिमल टर्म। ठीक है, क्योंकि हमें उनकी एक्सटर्नल बॉडी, हेयर पार्ट हमें सब पता रहते हैं। अब वहीं प्लांट, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर ऑफ इन आवर माइंड इज विल बी द प्लांट। ठीक है, हमें एक वीट प्लांट की हमारे दिमाग में हमारे माइंड में पिक्चर इन्फ्लेक्ट होगी, नॉट अ राइस। राइस हम नहीं कर सकते एक प्लांट की तरीके से। ठीक है, अब मैंने बोला मैंगो ट्री, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में मैंगो ट्री का एक साइंटिफिकली एक इमेज आपके माइंड में आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है the scientific term for these categories is a taxa।
यहाँ पे जो भी साइंटिफिक टर्म यूज होगा उसे हम लोग टैक्सा कहेंगे. Here you must recognize the taxa can indicate categories at a very different level. Plant also from taxa. Plant क्या है? जो plant नाम है, it is also come from the taxa. Wheat also a taxa. ये क्या है? ये भी taxa scientific name है. Animal, mammals, dogs all are a taxa. ये सारे क्या है? taxa के ही दिए हुए scientific term है. ठीक है. अब यहाँ पे एक दी है. So अगर हम यहाँ पे देखें, based on a characteristics, all living organism can be classified into a different taxa. This process is classification is taxonomy. इसी को हम क्या बोलेंगे? taxonomy बोलेंगे. हम यहाँ पे क्या करेंगे? external and internal structure along with the structure cell development को हम study, इसकी modern basis पे हम क्या करेंगे? study करेंगे. चलिए अब मैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है मैं उसी को आपको रीड कराती हूँ. ध्यान से Various organisms, human beings, about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. The just a minute, थोड़ा सा word systematics is derived from the Latin word system for the first, the living world 5. just a minute students. Various organisms, human beings were, since long, not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Linnaeus. Rationalized 2020. 6. Biology. Used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationships between organisms. 1.2 Taxonomic categories. Classification is not a single-step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category, referred to as a unit of classification, in fact, represents a rank and is commonly termed as taxon, PL, taxa. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an चलिए अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं. यहाँ पे एक सिस्टमैटिक का दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा समझते हैं. चलिए, human beings were since long not only interested in knowing more about the different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. Organism का diversity से क्या ऐसा रिलेशनशिप है, ये हम सबको जानना है. तो इसी ब्रांच को क्या कह दिया गया? सिस्टमैटिक्स कह दिया गया. सिस्टमैटिक्स क्या है? एक लैटिन वर्ड है जो कि सिस्टमा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करें हम ऐसा. The scope of systematic was later enlarged into include identification. ठीक है, अब हम systematically कैसे करें? सबसे पहले हमारा क्या है स्टेप? हमारा identification है, फिर nomenclature है, देन क्लासिफिकेशन है. सिस्टमैटिक टेक्स अकाउंट इनटू दिस. ये 3 स्टेप्स हमको फॉलो करते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बोलते हैं. इसी को हम स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. ठीक है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस. यहाँ पे सिंगल प्रोसेस नहीं है. यहाँ पे हायरार्की ये क्या है? स्टेप्स हमारे मिलते हैं. हर एक कैटेगरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रैंक या कैटेगरी को हम एक रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसे हायरार्की स्टेप. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. ठीक है, हर कैटेगरी क्या है? टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है. तो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को क्या बोल दिया गया यहाँ पे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. ठीक है, आई एम जस्ट मार्किंग विद द. आप लोग चाहो तो अगर आप लोग पेन कॉपी रखे हो तो यू कैन डेफिनेटली राइट इट आउट, और या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट में क्या बोला है? ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? वो सारी कैटेगरी जो कि कॉन्स्टिट्यूट होंगी साथ में उनको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोला जाएगा. और जो कैटेगरीज, ऐसी कैटेगरीज जो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट से बनेंगी उन्हें क्या कहा जाएगा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाएगा. ईच कैटेगरी रिफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. हर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर यूनिट को क्या बोला जाएगा? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाएगा. और इसको क्या टर्म बोला जाएगा? इसको हम टैक्सन कहेंगे या टैक्सा कहेंगे या टैक्सोनॉमिक कहेंगे. ठीक है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इजीली इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल. इसको हम एग्जांपल के समझ सकते हैं. इंसेक्ट्स प्रेजेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स. ठीक है, अब यहाँ पे इंसेक्ट्स का एक एग्जांपल दिया गया है. ध्यान समझिएगा कि इंसेक्ट्स को क्या है? एक ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में शेयर कर दिया गया है, इनको डाल दिया गया है क्योंकि उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे 3 पैर, जॉइंट लेग्स.
ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। तो ये क्या है, इनका एक कॉमन फीचर है, तो इनको एक ग्रुप में क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। इट मीन इंसेक्ट्स आर रिकग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो क्या है, रिकग्नाइजेबल है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, हम इसलिए उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड थर्स वर गिवन अ रैंक ऑफ कैटेगरी, और हम उसको क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम रैंक और कैटेगरी दे सकते हैं। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, रिमेंबर ग्रुप, यहाँ पे क्या है, ग्रुप का नाम दिया गया है, ठीक है। रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी जो रिप्रेजेंट करे, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ठीक है, कैटेगरी को हम रैंक भी कह सकते हैं। ईच रैंक और टैक्सन in fact represent a unit of classification. These taxonomic group categories are distinct biological entities and not merely a morphological aggregate. Taxonomic studies, all known as a organism, have led on the development of the common categories such as a kingdom. अब यहाँ पे क्या गया, इनको common categories बना दी गई है, जैसे kingdom, phylum और division for plant, class, order, family, genus and species। जैसे हम कहते हैं ना, cat की family का कौन होगा, लाइन, टाइगर, ठीक है। अब हम किंगडम की बात करते हैं, तो अलग अलग किंगडम्स की बात करते हैं, जैसे किंगडम ऑफ एनिमल हमने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 6 में, तो वहां पे किंगडम ऑफ प्लांट। तो ये क्या है, इन सारी चीजों को क्या करें, कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव अ स्पीशीज एज द लोवेस्ट कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे लोवेस्ट कैटेगरीज में किसको रखा गया है, स्पीशीज को रखा गया है। द क्वेश्चन यू मे आस्क इज, अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे क्या, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन अ वेरियस कैटेगरी। अब हम वेरियस ऑर्गेनिज्म को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर, सबसे हमें जो नॉलेज होनी चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है हमारे लिए वो क्या है, नॉलेज किसी भी ऑर्गेनिज्म का और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, उसका नॉलेज होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलरिटीज है, डिससिमिलरिटीज है, आइडेंटिफाइंग है, क्या सारी चीजें, हमें उसकी एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी अपन, वही चीज जब हम यही सारे कैरेक्टर हम जान लेंगे उस ऑर्गेनिज्म का, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी उस ऑर्गेनिज्म की। चलिए स्पीशीज पढ़ते हैं, स्पीशीज क्या होती है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीशीज, ठीक है। थोड़ी जो सिमिलरिटीज, जो फंडामेंटल किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल ग्रुप या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज मिलती हैं थोड़ी बहुत, उसे क्या कहा जाता है, स्पीशीज ही कहा जाता है, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देती हूँ तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मोर्फोलॉजिकल डिफरेंट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज को बहुत क्लोजली रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मोर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ, कुछ कुछ डिफरेंसेस के साथ हम कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है, एंड सोलोनम ट्यूबरसम, ठीक है, एंड पैंथेरोलियो, ठीक है। ये जो नेम दिए हैं ये क्या है, हमारे बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, ट्यूबरसम एंड पैंथेरोलियो, ठीक है। पैंथेरोलियो किसको कहा गया है, लाइन को कहा गया है, और सेलोनम ट्यूबरसम किसको कहा गया है, पोटैटो को कहा गया है, ठीक है। अब आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो मैग्निफेरा है वो कौन सा नेम हो गया, और इंडिका कौन सा नेम हो गया, सोलेनम कौन सा नेम हो गया, ट्यूबरसम कौन सा नेम हो गया, ये मैंने कल आपको समझाया था, एंड पैंथेरोलियो कौन सा नेम हो गया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। All three names, indica, tubersum, leo, represent specific epithet, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। जो सेकंड वर्ड होगा it is known as the specific epithet, while जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, हमारा genera, another high level of taxon category।